Motivation, firstly, it's in my blood. I'm a Sindhi. Okay, so I know. Sindhis are about opening their own businesses and Hmm. working. It's not like I didn't do parties and all. मैंने मस्ती भी बहुत की है, पार्टी भी बहुत की है, काम भी बहुत किया है. She was a very well-known TV actress. She has shared screens with Moni Roy and Arjun Bijlani as well. बट ये जो इंडस्ट्री अभी सब बोल रहे कि यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत होता है, तो ये सच बात है या नहीं? नेपोटिज्म का मतलब ही मुझे समझ में नहीं आता है ऑनेस्टली. लोगों ने इतना हवा बना दिया नेपोटिज्म. मतलब नेपोटिज्म क्या होता है? हमसे ना हो पाएगा. हमारे बस की नहीं है बार बार ऑडिशन देना. Why you want to be a crew? Don't say कि ये तो हमेशा से मेरा सपना था. तो अगर किंगफिशर की बात आई गई है तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे इसके पीछे दैट they were not paying to their employees salaries and everything. I was bullied in Kingfisher. Hello and welcome everyone to the exclusive Q&A sessions at Wolves International. And today we have a very special guest, Ms. Rishika Mihani, CEO of Wolves International. Hello, Ms. Rishika. Thank you for the nice introduction, Russell. Most welcome. So, ma'am, to start off with, I heard that you started working at a very young age. Yeah, I was 15 when I started working. I had just finished my 10th standard, and my dad's friend had a company which was for Punjabi suits, the material, and he just said कि आजा काम कर ले. I said ठीक है, okay. I went and I did it for 3-4 months. My salary was 2,000 rupees. Oh. 2,000 rupees that time, which is today's 80-85 dirhams for the entire month. I did that for 3-4 months, and then I started my 11th, and then I did something else. I did what? I was working in a travel agency. Oh. When I was in my 11th, yeah. So, just to ask you, like the people of your age, like you started working at 11 or 10 something. So, like at this age, people are mostly into parties and everything. What made you motivate so much that you need to start working at this age only? What was the motivation behind it? Motivation, firstly, it's in my blood. I'm a Sindhi. Okay, so I know. Sindhis are about opening their own businesses and working, and they're always attracted towards making money. That is there in me, which will always be there, hopefully. So it's not like I didn't do parties and all. मैंने मस्ती भी बहुत की है, पार्टी भी बहुत की है, काम भी बहुत किया है, सब कुछ बैलेंस करके चली हूँ मैं. तो काम तो मैंने जल्दी शुरू किया था, बट हाँ, उसके साथ साथ मस्ती भी की है मैंने. So, just for the viewers, the Indian people know who Miss Rishika is. She was a very well-known TV actress. She has shared screens with Moni Roy and Arjun Bijlani as well. And she has been disappeared from the market for the like 10 years now. So No 10 years, no 10 years, lies. I left, I think 4.5, 5 years ago, I left it because I understood हमसे ना हो पाएगा. हमारे बस की नहीं है बार बार ऑडिशन देना. क्योंकि एक जब लीड शो मिला था, उसके पहले मैंने 2-2.5 साल ऑडिशंस दी थी. उसके बाद लीड शो मिला, वो भी चला 5-6 महीने, फिर बंद हो गया वो. फिर से वही करो, फिर से वही करो. So for an actor to find a job is a job. So I did that for 12 years. सब किया है उसमें. मैंने मेन कैरेक्टर भी किया है, नेगेटिव भी किया है, आत्मा भी बनी हूँ, भूत भी बनी हूँ मैं, रानी भी बनी हूँ, नागिन भी थी मैं, CID, सावधान, क्राइम पेट्रोल. आई हैव डन इट ऑल. सब देखा है हमने तो. Yeah. So मेरे को सिर्फ एक बात पूछनी थी आपसे. इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री थी, आप इतने ग्लैमरस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इतना सब कुछ है आपके पास, फेम, एवरीथिंग. What made you leave that industry and come to Dubai? दुबई में भी बहुत ग्लैमर है वैसे. ये तो सच बात है. और आजकल हमारी इंडस्ट्री में जितना सोशल मीडिया वो हो गया है, हाँ. आउट ऑफ कंट्रोल. बट हो गया था, वो कर लिया 12 साल. पता है यहाँ पे यही होगा. अब मैं अगर 2-3 शोज और भी कर लेती तो भी मुझे पता था कि नेक्स्ट यही होने वाला है. ये चलेगा, जितने साल भी चलेगा, उसके बाद बंद होगा तो मुझे दूसरा फिर से काम ढूंढना पड़ेगा. और आई वॉज नॉट दैट हंग्री फॉर बीइंग एन एक्टर. एक आपको जुनून चाहिए. करेक्ट. वो जुनून मेरे में नहीं था. काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, 1-2 लाइन दे दी तो ठीक है, नहीं भी दी तो भी मैं खड़ी हो जाऊंगी कि चलो पर डे मिल रहा है. मुझे वो आई हैव सीन एक्टर्स, दे गो क्रेजी. उनका मतलब पूरी लाइफ बन जाती है. वो मेरे साथ नहीं था. मुझे था कि बिकॉज माई सिस्टर वॉज डूइंग, आई गॉट इन. लाइक आई न्यू पीपल, बट मुझे मेहनत अपनी करनी पड़ी. बहुत सारे ऑडिशंस देने ही पड़े. कोई ऐसे था नहीं अच्छा ये मुस्कान सिस्टर कम वील टेक यू, ऐसा नहीं था. बट
फिर भी आई वाज लाइक हो गया, अब मुझसे नहीं होगा. आई वाज डन विद द होल मोनोटनी ऑफ थिंग्स. आई वाज डन. बट ये जो इंडस्ट्री है अभी सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत होता है, तो ये सच बात है या नहीं? नेपोटिज्म का मतलब ही मुझे समझ में नहीं आता है ऑनेस्टली. लोगों ने इतना हवा बना दिया नेपोटिज्म. मतलब नेपोटिज्म क्या? आई हैव अ ड्राइवर whose son is a driver. I know a lawyer जिसका बेटा लॉयर है. I know a doctor जिसकी पूरी फैमिली डॉक्टर्स हैं. तो अगर कोई प्रोड्यूसर है या कोई एक्टर है, उनके बच्चे अगर एक्टर्स हैं, तो वो नेपोटिज्म कैसे हो गया? टुडे somebody, for example, my industry, real estate agency है किसी की, he is the owner, उसके बच्चे तो है ही ना, वो एजेंसी में ही है. करेक्ट. I'm not taking side of this whole industry or nepotism thing, but उनके लिए आसान है उनको काम मिलना first, but to maintain that, because everybody is comparing them with their fathers or mothers. Everybody is waiting for them to fall. They have to really maintain themselves. They are always in the eye of the cameras. It's not easy for them also. वो कोई नहीं सोचता है बोलने के लिए. बहुत अच्छा वर्ड सबको मिल गया, nepotism sounds very good, तो बोलते हैं. बट यार उनको चलो मिल गई एक. उसके बाद कितने एक्टर्स ऐसे भी देखे हमने जिनकी पिक्चरें नहीं चलती हैं, जो फ्लॉप हैं, और कितनी बेइज्जती होती है उनकी. करेक्ट. बहुत ज्यादा लोग छोड़ते नहीं है उनको. सो people should also talk about that. People should also talk about कि nowadays it's easier for the outsiders to get into the industry. Though the word outsider is wrong, but yeah, they are getting into it. Talent is important, right? Talent is important. आपका talent है, आप मेहनत करोगे तो आप वहीं भी पहुंच सकते हो. अभी चलो मेहनत की बात आ ही गई है, तो टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले मैंने सुना था कि आप फ्लाइट अटेंडेंट भी थी फॉर किंगफिशर. मैंने आई एम अ chameleon, मैंने बहुत कुछ किया है. शायद इसके बाद मैं कुछ और ही करूंगी. बट या 2 years I was in Kingfisher Airlines. I started that after just my 12th exams. My father filled the form and he said कि interview है. I said किस चीज का है? I said Kingfisher का है. Kingfisher क्या है? नहीं, वो अपनी एयरलाइन खोल रहे हैं. I said चलो. So we went, we gave the interview and I was selected. The one thing they taught us not to say in the training, I said exactly that. They said कि अगर कोई पूछे why you want to be a crew, don't say कि ये तो हमेशा से मेरा सपना था. When Dr. Malia came and asked me this question, why you want to be a crew, I said it was always my dream. So but I still got selected and then वहां से वो जर्नी शुरू हुई. 2 साल मैंने काम किया. That was also like मस्ती में मैंने किया. पैसे मिल रहे हैं, I think 40,000 rupees तक हो जाता था, 35-40,000 layovers मिला के. The good part was about going out on the layovers. सारी लड़कियां थी, ग्रुप्स थे, अच्छे अच्छे होटल्स में रहो, थोड़ा बहुत काम करो, मस्ती करो और घर आ जाओ. So Kingfisher did give me a lot of exposure coming from Ahmedabad. Though I studied in an English school, English वहाँ पे इतनी वो बोलते नहीं थे. I was bullied in Kingfisher. I was bullied for my weight. I was overweight. I used to get grounded. तो मेरा वैसे भी वेट के साथ हमेशा से ये चलता रहा है. 2 दिन भी खाऊंगी मैं, 2 दिन में 4 किलो भी पुट ऑन कर सकती हूँ. So people used to bully me about my weight. People used to bully me about my English. And then I knew my flaws and I had to work on them and I worked on them. Exactly. तो अगर किंगफिशर की बात आई गई है तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे इसके पीछे दैट they were not paying to their employees salaries and everything. Yeah. So what was the environment at that point? I left much before it. I saw the good times only. 2005 to 2007 मैंने काम किया, उसके बाद I left. I got into 6 महीने मैंने सोचा मैं क्या करूंगी. Then I started my television thing. 2005 to 2007 was the best time for Kingfisher and I've seen that best time. But a lot of my friends who worked till the end, उनको 1-1 साल की सैलरीज अभी तक नहीं मिली है. तो हम डाल देते उसमें कि इनका सैलरीज दे दीजिएगा प्लीज टाइम पे. सबने सब कुछ कर लिया है, मोर्चे निकले हैं, धरने निकले हैं, सब कुछ हो गया. किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, ना ही मिला है अभी तक. सो जस्ट टू गिव अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट मिस ऋषिका, इन्होंने एक ड्रीम देखा था. एग्जैक्टली 8 months ago in January she dreamed about a company of her own. तो उन्होंने स्टार्ट किया ये every inch in her office she has planned by herself. एंड आज 8 महीने बाद हम यहाँ बैठे उनकी न्यू ऑफिस में, न्यू स्पेस में, फुल पेंट हाउस, फुल 20th फ्लोर. मैम इसके पीछे अभी आपकी क्या प्लानिंग होगी? जैसे आपने पिछले ऑफिस में किया था कि एवरी इंच यू हैव सैट एंड सॉ एवरी सिंगल डिटेल. व्हाट वुड बी द प्लान फॉर दिस ऑफिस? 17 फ्लोर के ऑफिस बनाने में मेरे साथ इतनी सारी चीजें हुई हैं. मैंने इतना सीखा है, आई कांट टेल यू. When we started the company,
एक तो हमारे साथ स्कैम्स बड़े हुए हैं भाई, दुबई में होते हैं स्कैम्स, हमारे साथ भी हुए हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, बट वी लर्न अ लॉट। सो ये 2025 का जो साल है वो सिखा के बहुत जा रहा है। जो पुराने फ्रेंड्स थे या जिन लोगों को हम जानते हैं उन्होंने स्कैम्स किए, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने स्कैम किया, पूरा पैसा लेके गया, आधा काम भी नहीं किया। मुझे खुद काफी चीजें करनी पड़ी, मुझे और अंशुल को। हमने टेबल्स कटवाई हैं, मैंने खुद ड्रैगन मार्ट जाके एक एक चीज सिलेक्ट की है खुद मैंने। पैनल्स हो गए, कलर कॉम्बिनेशन हो गए, सोफाज ऑर्डर करने हैं, फर्नीचर देखना है, इतनी सारी चीजें थी दैट हम लोग सुबह को 8 बजे से शुरू करते थे, रात के 3-4 बजे तक काम खत्म ही नहीं हो रहा है। एंड इट्स अ स्मॉलर स्पेस, इट्स व्हाट 2000 स्क्वायर फुट, और उसको बनाने में मुझे 2 महीने लग गए थे। एंड लिटरली हालत खराब हो गई थी। देयर वाज अ पॉइंट कि जब इंसान बहुत थक जाता है, वो गुस्सा नहीं कर सकता है, वो चिल्लाता नहीं है, वो बस रोता है। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं अंशुल के सामने बैठ के बस आई एम जस्ट क्राइंग। ही इज लाइक व्हाट हैपेंड, आई एम लाइक आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, बट कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट डे आपका फिर से चलता है। इट्स अ लाइफ, यू नो, इट्स हैमस्टर व्हील पे हैं हम लोग, सब लोग, बस चलना ही है। तो वो कर रहे थे हम बस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए खुलासे करने के लिए। स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड।